Hello everyone, myself Jalaj Nagpal and I welcome you all to EduTap. So in this particular session, we are going to discuss regarding the most important exams which is about to come, which is your UPSC, EPFO, APSC examination. Now my dear friends, APFC exam has many subject components, but one subject component which is very much tough and it is very much new to the students, it is accounts, insurance and auditing. Okay, many students are mailing us each and every day that how we have to cover, हम लोग इसको cover कैसे करें, because this component is very much new to all the UPSC aspirants and this component is also very much new for all the people who are coming from science background. So be there with me for next 20 to 25 minutes and I will decode all your queries. First of all, we will see previous year questions. We will also have a proper timetable of next 15 days that how you can cover these components in just 15 days by just giving 3 hours in a day. So just be there with me and you are going to be an expert when it comes to the accounts, insurance and auditing. So before moving ahead, my friends, we have this wonderful gift for you, which is an ebook, or you can also say a brochure, which is for related to the APSC examination. Now, why we have launched this brochure? See, as students, we have multiple queries that APSC में कितनी पोस्ट होती है, APSC examination में syllabus क्या है, APSC को कितने professionals को कितनी salary मिलती है, and many doubts are there. But now, my friends, if you are having multiple doubts, that's why we have launched one-stop solution for you. In this ebook, you are going to get all 4 year previous year questions of APSC. Plus, you will be also getting decoded syllabus. Mind you, I'm using the word decoded. Literally, एक point को हमने वहाँ पे mention कर रखा है, and you will be able to get each and every part of the syllabus in this particular ebook. And my favorite, my friends, is the salary structure. So you will be also getting the salary structure of APFC professionals, and that salary structure will might motivate you when you are feeling down. Okay, now what is the price? Literally, it's free. So what you have to do is you just have to go in the description box, click on the link, and you will have your APFC ebooks right in your inbox. This is must have. You should have a complete printout of this particular ebook and paste it on your study desk, because you will be having a great vision then. So now let's move ahead towards the most important component, which is your relevance of accounts, insurance and auditing. See my friends, when it comes to the relevance, by relevance we means the importance कि क्यों हम इसे पढ़े. अगर आप किसी कंपोनेंट को पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही आपको समझ में आएगा कि वो कंपोनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. When we check the previous year questions, my friend, in the year 2012, in the year 2015, there were 1 question and 3 questions respectively. Now, in APSC examinations, people will feel that कि यार ये तो बहुत कम question है, but mind you, people are missing selections by 0.25. So for those who are like on the verge of कि हम in हो जाए और out हो जाए, for them, this particular component is a must do. See, when we are seeing the relevance, we have to draw out some learnings as well कि हमने इससे सीखा क्या है. The very first thing which we understand is that don't test your luck. See, 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होंगे. एक वो होंगे जो कि बिना पढ़े भी तुक्का लगा के आ जाएंगे. हो सकता है उनका तुक्का सही हो या गलत हो, बिकॉज तुक्के में एवरीथिंग इज लाइक 25-50% or sometimes it's like 0% as well. But when it comes to the person who is studying this particular component अच्छे से, for that student it will be like not based on luck. That student will mark their answer with 100% confidence. और अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप सिर्फ यूं ही तुक्के लगा के आ रहे हो, then you are like hitting, आप अपने बोलते ना पत्थर पे, सर को पत्थर पे मार रहे हैं, तो वो वाली कहावत हो जाएगी. सो डोंट टेस्ट योर लक. आप ये मत सोच के जाओ कि इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं तो तुक्का लगा के आ जाऊंगा. तुक्का लगा के आओगे, हो सकता है वो सही हो जाए, बट अगले दिन हो सकता है वो गलत भी हो जाए. ठीक है, सो डोंट टेस्ट योर लक. पढ़ के जाओ. 15 दिन का ही टाइम मांग रहा हूं. आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच डेज टू यू. 15 दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ लो एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज डन. Second thing is then, I call these particular questions of accounts, insurance and auditing as low hanging fruits. Low hanging fruits यानी क्या होता है? जो कि easy है. अगर आप 3 घंटे पढ़ भी लेते हो इस component को, then you can mark your answer confidently. And focusing on the word confidence. अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो तो यू कैन मार्क योर आंसर्स विद कंप्लीट ग्रेस. यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर कि मैं सही करके आया हूं. ठीक है, सो दैट फियर ऑल्सो गोज आउट. सो लो हैंगिंग फ्रूट्स क्यों है? बिकॉज इनका लेवल कम है, बिकॉज इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो चाहिए होता है. और अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बना लेते हो, देन टू यू कैन किल दिस क्वेश्चन. आई एम यूजिंग द वर्ड किल बिकॉज आई विल लेट यू नो व्हाई.
because these are really very easy questions. आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और उससे you can kill this question. Again, the third learning is the trend is changing. Trend मतलब कि यार ये तो हमने को दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हुए पिछले जो 2 अटेम्प्ट्स के पेपर थे, बट अगर आप ईपीएफओ, ईओ एंड एओ के पेपर देखोगे तो ट्रेंड चेंज हो रहा है. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आई विल प्रेजेंट यू द फैक्ट्स. सी ईपीएफओ, ईओ एंड एओ के जो एग्जाम्स है उसके अंदर अगर आप सेम कंपोनेंट से देखोगे तो 2017 में 16 क्वेश्चंस थे और 2021 में 12 क्वेश्चंस थे इस कंपोनेंट से. 16 और 21 क्वेश्चंस, दीज आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेसिक है, इजी है, सिर्फ आपको पढ़ना है. और अगर आप देखोगे एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो सेम है. अगर आपकी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी सेम है तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब ट्रेंड ईओ एओ के पेपर में चेंज हो रहा है तो क्या पता वो एपीएफसी के पेपर में भी चेंज हो जाए. और अगर वो चेंज हो जाएगा, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप सेफ रहोगे, वरना फिर आपको वही है, तुक्के लगाने पड़ेंगे विच कैन बैकफायर. वो हो सकता है कि वो होता है ना, गन चलाते हैं और कभी कभी अपने ऊपर ही फट जाती है. सो दैट थिंग कैन हैपन विद यू प्रोवाइडेड दैट यू आर नॉट स्टडिंग. अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो वो आपके साथ हिस्सा नहीं होगा. Okay, so what is your learning for? The trend is positive for EPFO, APFC exam. Trend is positive that I am expecting more questions. Now मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. पिछले साल अगर 3 थे तो हो सकता है इस साल 6 से 7 आ जाए, हो सकता है 3 से ज्यादा आएंगे, बट 3 तो आई थिंक मिनिमम दे विल आस्क. एंड फॉर दोज 3 अगेन आई सेड कि वो आपको नैया पार लगा सकते हैं, नैया आपकी डुबा सकते हैं. सो यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन. नाउ order of importance, as I have told you that I am expecting 7 to 8 questions, my friend. 7 to 8 questions. Out of those 7 to 8 questions, the most important component is accounts. Accounts will be the major kingmaker of this particular component. Okay, you can surely get 5 to 6 questions. Then comes insurance. You can surely get 1 to 2 questions in insurance, and then comes the auditing. Auditing में you can again expect 1 to 2 questions. But if you ask me, I will say give your maximum time to accounts. अगर आपका अकाउंट्स अच्छे से हो गया देन यू आर श्योरली गेटिंग गुड मार्क्स. एंड देन मूव टू द इंश्योरेंस कंपोनेंट. ओके, देन मूव टू द इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज रियली वेरी इजी. एंड व्हेन योर इंश्योरेंस इज डन देन मूव टू द ऑडिटिंग कंपोनेंट. सो दिस शुड बी योर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दैट यू हैव टू रीड. फर्स्ट अकाउंट्स पढ़ लो, देन कम्स टू द इंश्योरेंस एंड देन गो टू द ऑडिटिंग कंपोनेंट. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस that what you have to read. Okay, now let's move to what and how to study for accounts and auditing. See, जब आप accounts अच्छे से पढ़ लेते हो ना, थोड़ा थोड़ा auditing का part already covered हो जाता है. So let's first discuss कि अपने को accounts में क्या क्या पढ़ना है. So this is the overall chapter list which I will be giving you. इन्हीं chapters को पढ़ लो and you are good to go. I will tell you why, because I will be sharing some previous year questions as well. See, the first chapter is Introduction to Accounting. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है. सिर्फ आपको पढ़ना है कि व्हाई वी नीड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वेरी बेसिक चैप्टर. कुछ लोग तो इसको 1 घंटे में भी खत्म कर देंगे बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. जिस तरीके से साइंस की लैंग्वेज होती है, बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, अकाउंट. सो बिजनेस को अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको अकाउंट्स आना चाहिए. देन यू कम टू चैप्टर 2 विच इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आप समझते हो कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या है. जैसे गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है. तो बहुत इजी चैप्टर है, हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स ओनली. बट ये दोनों चैप्टर्स विल सेट योर बेस. आई वुड से दिस 2 चैप्टर्स विल सेट योर बेस. अगर आपका बेस बन गया, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई हेड राइटिंग बट दिस इज हाउ इट गोस. बट wait, coming back to the video again, chapter 1 and 2 is quite easy and you can do it. Chapter 3, my friend, is the soul of your accounts preparation. Now why I am saying soul, because in chapter 3 you will start with journal entries, and journal entries, my friend, is like AK-47. अगर आपके पास AK-47 है then you can go and fight any war. Same happens with journal entry. आप पूरे accounts में कहीं भी stuck हो जाओ तो you just have to use your journal entries with you and you can easily sail through. So chapter 3 is the most important according to me, and then you will come to chapter 4. Now many people will say that कि सर हम direct chapter 3 पढ़ ले. That is not going to happen because chapter 3 का जो base है वो chapter 1 and 2 से बनेगा. Okay, so this 4 is like completely basic chapter. You will understand ledger, you will understand journal, you will understand various subsidiaries book.
बहुत ही इजी कॉम्पोनेंट्स है। और सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा क्या है, जैसे जर्नल के अगर आप देखोगे, जर्नल बनाने को वहां पे 6 रूल्स है, तो उन 6 रूल्स को पढ़ लोगे और जर्नल इज कंप्लीट। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये बेसिक्स है, बिकॉज आगे भी अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हायर एडवांस चैप्टर्स उस पर देखोगे तो उसमें यही सब आएगा। तो आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तो अच्छे से करके जाना ही जाना है, ये सोल है अकाउंटिंग का। चैप्टर 5 and 6, see, chapter 5 is trial balance and chapter 6 is bills of exchange. ट्रायल बैलेंस माय फ्रेंड्स इज हार्डली अ 20-minute चैप्टर, अगर आपका चैप्टर 3 अच्छे से हो गया है तो, बिकॉज उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंसेस पोस्ट करने एंड यू आर गुड टू गो। तो चैप्टर 5 अगर आपका चैप्टर 3 अच्छे से हो गया है तो चैप्टर 5 इज हार्डली अ 20-minute गेम। चैप्टर 6 विच इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी करना कुछ नहीं है, जर्नल एंट्रीज ही करनी है, केस को समझो और उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, और थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स है, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, रिबेट ऑफ बिल क्या होता है, तो बहुत इजी कंपोनेंट हो जाता है जब आप चैप्टर 3 अच्छे से कर लेते हो। तो आई एम रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग कि आपको चैप्टर 3 तो अच्छे से करना ही करना है, और चैप्टर 3 तभी अच्छे से हो पाएगा जब आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से हो जाए। सो माइंड यू माय फ्रेंड्स, दीज 6 चैप्टर्स आर लाइक मस्ट डू, ये तो आपको करने ही करने हैं। चैप्टर, ये टॉप 6 जो चैप्टर्स है ये रेड में इसलिए हो रहे हैं मार्क, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको अच्छे से कर लो एंड यू आर गुड टू गो। हो सकता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस आएंगे इस कंपोनेंट में वो इन्हीं 6 चैप्टर्स में से हो। ओके, देन यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स द लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हिच इज चैप्टर 7, 8 एंड 9। Chapter 7 is regarding income statement and balance sheet. Chapter 8 is regarding ratios and chapter 9 is regarding cash flow. Now, again, अगर आपको एक मतलब होता है ना कि मेरे को 100% कवरेज चाहिए, तो यू कैन डू चैप्टर 7, 8 एंड 9 एज वेल, बट अगेन डोंट गो डीप, जस्ट हैव अ सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। होता है ना कि जैसे मेरे को रेशियोज है, मेरे को करंट रेशियो पढ़ना है, तो मैं करंट रेशियो का सिर्फ ये पढ़ लूंगा कि उसका मतलब क्या है, उसका एक फॉर्मूला देख लिया और एक क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं कि मैं करंट रेशियो भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वो मत करना। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल देख लिया न्यूमेरिकल के थ्रू और उसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, मूव टू नेक्स्ट रेशियो। देन ऐसे करके यू हैव टू कंप्लीट 7, 8 एंड 9। ओके, एंड माइंड यू माय फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 6 चैप्टर्स जो कि 1 से लेके 6 तक है, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, देन चैप्टर 7, 8 एंड 9 भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। सो व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्लाइड, कि अपने को 1 to 6 तो अच्छे से करना ही करना है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है देन आई विल हैव टू गो टुवर्ड्स चैप्टर 7, 8 एंड 9। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन चैप्टर 7, 8 एंड 9। मूविंग अहेड, जो अकाउंट्स का सिलेबस है, देन यू मूव टुवर्ड्स चैप्टर 10, 11, 12 एंड 13। नाउ व्हेन आई टॉक रिगार्डिंग चैप्टर 11, चैप्टर 10 to chapter 14, these are the, I should say, less important chapters। अगर आपके पास टाइम कम भी पड़ता है, that's why I have written over here that only do the basic part। सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक पार्ट करना है, एंड माइंड यू यहाँ पे 3 स्टार भी लगा रखे हैं। बेसिक पार्ट का मतलब ये है कि आपको सिर्फ सरफेस रीडिंग से पढ़ना है। अगर वो भी टाइम नहीं मिलता सरफेस रीडिंग का, कि आप बहुत ज्यादा ही बिजी हो अपने वर्किंग में, देन यू कैन स्किप दिस चैप्टर। बट यस, अगर आपको फुल टाइम प्रिपेयरिंग और टाइम मिलता है तो इन चैप्टर्स का सिर्फ बेसिक कंपोनेंट ही पढ़ के जाना, डोंट गो डीप। देन यू मूव टू डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चैप्टर 15 which is your accounting standards related for inventories, then you have chapter 18 and then you have chapter 20 which is your final accounts। These 3 chapters are really very important। past year अगर आप EO AO के पेपर देखोगे और APFC में भी देखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए हुए। अब होता क्या है, लेट मी टेल यू, मेनी स्टूडेंट्स से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत एडवांस चैप्टर्स है, बहुत सारा पढ़ना होगा, बहुत सारा रटना होगा। सही है, मैं I truly understand your concern, but that particular concern is related to all those people who are preparing for chartered accountancy। This is not true for all those people who are preparing for APFCs यार। Why? Because यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। अब बेसिक का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में, जर्नल एंट्रीज। ओके, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर्स भी आराम से कर लोगे। करना कुछ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें होगा क्या, आपको बस समझना है कि आपको एक प्रॉपर्टी, आपको एक अपने एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करना है और उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, और आज की जर्नल एंट्री तो आप चैप्टर 3 में ही सीख चुके होगे। सो वही है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फर्स्ट टू चैप्टर 6, जो टॉप 6 चैप्टर्स है, वो तो अच्छे से करने हैं। उसके बाद आई विल एडवाइस यू टू फिनिश दोज लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देन डायरेक्टली स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप चैप्टर 15, 18 और 20 अच्छे से कर लो, एंड देन यू कैन हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एवरी चैप्टर।
आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर माई लिस्ट दैट इज चैप्टर 20. चैप्टर 20 में भी कर वही बेसिक ही है सारा, बट चैप्टर 20 में जैसे आपको बैलेंस शीट कैसे बनती वो समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो समझ में आएगा. तो चैप्टर 20 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई दोज चैप्टर्स आई एम गिविंग यू अ वेरी बोलते हैं पत्थर की लकीर टाइप. जो चैप्टर्स यहाँ पे रेड के अंदर मैंने हाईलाइट करे उनको तो करके जाना ही जाना है. बट इफ आई से यू कि आप डायरेक्ट चैप्टर 15 कर लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. पहले आपको टॉप 6 चैप्टर्स ही कवर करने हैं एंड देन यू हैव टू कम टू दिस कंपोनेंट व्हिच इज चैप्टर 15 एंड देन गो टू 18 एंड देन कंप्लीट 20. बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी है. थोड़ी का मतलब ये है कि 3 घंटे लगाना है और आपका ये कंपोनेंट हो जाएगा. दैट इज माई गारंटी फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तभी आपको पता चलेगा दैट व्हाई आई एम सेइंग कि आपको सिर्फ बेसिक करना है. Which one of the following is the first book of transaction which business units are recorded? Now, अगर किसी को accounts का A भी पता है, like बहुत basic understanding है, this question can be solved within 2 seconds only. 2 seconds. And 2 seconds में you are going closer to your APFC's ज्ञान. Now, the answer of this question is your journal. जर्नल को बेसिक बुक ही इसलिए बोलते हैं बिकॉज सारी एंट्रीज उसमें ही जाती है. लाइकवाइज इफ यू सी देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच आर देयर ऑन योर स्क्रीन and you will be able to solve these questions under less than 5 minutes or 5 seconds, sorry, not minutes. 5 minutes बहुत ज्यादा हो गया, but 5 seconds. Okay, and that's why I have told you that learning 2 में आप अगर जाओगे तो वहां पे मैंने आपको यही बोला है that they are low hanging fruits. This is you right now and you just have to accept this particular apple. कम एफर्ट्स में अपने को ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने. यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी भी होती है जिसे बोलता हूं मैं सीसॉ स्ट्रैटेजी. सीसॉ स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप एफर्ट्स कम डालते हो बट आपको रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं. तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. हो सकता है कि आपका पॉलिटी में आपका जो और डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री का कंपोनेंट है उसमें आपके 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे क्योंकि आपने उसमें मेहनत भी करी है बट वो सब्जेक्ट इतना वाइड है कि वहां क्वेश्चन नहीं बन रहे. कम टू दिस कंपोनेंट, थोड़ा सा पढ़ो एंड यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स. ओके, नाउ अगेन थिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर अपन देखें दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय फ्रेंड दिखने में बहुत टफ लगता है. दिखने में सीरियसली जब मैंने भी पहली बार देखा था कि बहुत टफ लग रहा है, बच्चे कैसे करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन में. बट कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है, टेबल के अंदर वैल्यूज डालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर इन 15 सेकंड्स. 15 सेकंड्स में यू कैन स्कोर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लाइकवाइज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. अगर आपके बेसिक क्लियर है देन यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वेरी इजीली. अगर आप देखोगे चैप्टर 20 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है विच इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज योर शेड्यूल 8. बहुत इजी क्वेश्चंस है. आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत डालनी है और मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने. वही मंत्र है पूरी वीडियो के अंदर. ठीक है, देन इंश्योरेंस आई विल से दिस इज द 1 day सब्जेक्ट फॉर यू. If you are having good concept of your reading skills, अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती है then you can finish insurance in just 1 day. What are the different chapters? See, accounts थोड़ा बड़ा है, इंश्योरेंस छोटा है, ऑडिटिंग उससे भी छोटा है. So accounts अगर आपने कवर कर लिया so then you are playing safe. इंश्योरेंस कर लोगे it's like a cherry on the cake. Chapter 1 is like basics of insurance. Chapter 2 is regarding types of insurance. Chapter 3 is regarding IRDAI and Chapter 4 is regarding emerging concepts. Last year अगर आप APFC के क्वेश्चंस में देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था बैंक का इंश्योरेंस से. तो बैंक का इंश्योरेंस आपकी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, कंबाइंड इंश्योरेंस क्या होता है, एंड देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस. सो बहुत सारे इमर्जिंग कंसेप्ट है जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं. Okay, and if you see there was one question on bank insurance. Again, you're learning too, which is your low hanging fruits will apply over here as well. Why they are low hanging fruits? आपने बेसिक पढ़ा एंड बेसिक से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. देन अब बच्चे पूछेंगे कि हम पढ़े कहां से. Obviously there are different sources. So the first source covering all the basics topics, that is from 1 to 6. Remember the accounts timetable or accounts, I should say, chapter wise list which I have given to you. अगर आप उनको देखोगे तो आप एनसीईआरटी उठा लो सीबीएसई की, वहां से अगर आप कर सकते हो तो यू कैन डू इट. बट होता क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो तो उसमें बहुत वाइड है. लाइक इफ आई रिमेंबर कि अगर आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. ओके, सो दिस इज योर source 1 which is your NCERT. Then this is my favorite which is your DK Goel. Every CBSE student knows regarding DK Goel.
Then if these two are not available, then you come to the T.S. Garewal. This is also a good book. But as I have told you कि ये जो books है ये 11th 12th के जो कॉमर्स एंड अकाउंट्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए है, तो उनको तो वाइड ही पढ़ना है, अपने को स्पेसिफिक पढ़ना है, तो थोड़ा आपको फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा छाटना पड़ेगा. और अगर आप वो छाटना सीख गए देन इट इज रियली वेरी गुड. अगर नहीं सीख पाते तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. Then for some advanced chapters you can go on the ICA website and you can download their material. It's free of cost. वहां पे PDF मिलेगी, वहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डिफरेंट उन सबकी PDF ही मिलेगी. बट आई हैव टोल्ड यू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपको लिमिटेड ही पढ़ना है. रिमेंबर द लिस्ट विच आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस स्लाइड. नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टडी फॉर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के लिए आपको कैसे पढ़ना होगा. इंश्योरेंस के लिए अगर आपको जैप की बुक्स मिल जाती है या फिर जो अपना डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है उसमें से भी अगर आप पढ़ लोगे देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड. अदरवाइज बुक्स नहीं मिलती है तो जस्ट गो ऑन दी IRDAI वेबसाइट विच इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वहां पे यू हैव टू क्लिक ऑन द इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस एंड देन यू विल हैव सर्टेन ई बुक्स. उनको डाउनलोड कर लो एंड यू कैन रीड इट ओवर हियर देयर एज वेल. स्मॉल है, आराम से हो जाएगा. Then this is the timetable which I have brought for you from starting from day 1 to day 15. Out of day 1 and day 15, I am assuming that you will study for 3 to 4 hours only. Okay, so 3 to 4 hours ही है. Now, before moving to timetable, I will like to give you a disclaimer. हो सकता है कि जो टॉपिक मैंने डे 1 में दिया हो वो आपका 2 घंटे में ही कम हो जाए. तो स्टार्ट विद टॉपिक 2. So you will have to customize your own timetable, but this is the standard timetable which I am giving to you. See. On day 1, start with the introduction to accounting and theory base of accounting. This chapter is regarding the base only which I have told you. Give maximum time to recording of transactions part 1. आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब हो जाएगा आगे. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा. ओके, सॉरी. Then day 2 has to be completely given to recording of transactions. Then when your recording of transactions part 1 is completed, then part 2 is quietly doable. Okay, and side by side start with trial balance. This or I should say balance of exchange. कोई भी एक चैप्टर उठा लो, या तो यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस भी ले सकते हो. ओके, सो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू. अगर आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लेते हो तो फिर यहाँ पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा. ओके, सो दैट इज कंप्लीटली ऑन यू. बट आई विल से स्टिक टू दिस सिलेबस. अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 2 के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी खत्म कर लेते हो देन ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग गेन फॉर यू. फिर आपका जो ट्रायल बैलेंस वाला कंपोनेंट है डे 4 पे, दैट कैन ऑल्सो बी डेल्ट इन हार्डली 30 मिनट्स प्रोवाइडेड कि आपके बेसिक्स क्लियर हो. बेसिक्स कहां बनेंगे आपके पहले 3 दिन में. ओके, देन एलोकेट अ कंप्लीट डे टू रिविजन. जो आपके टॉप 6 चैप्टर्स है इसमें से ही मैं कह रहा हूं 90% चांसेस है कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बट अगेन टू प्ले सेफ आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो ऑल द 15 days. Then comes to ratio and cash flow and income statement. Ratios, cash flow and income statement. Again, limited study is what I recommend you because ratios अगर आप खुद देखोगे ना बहुत बड़ा चैप्टर है. डिफरेंट मोर देन 25 टाइप्स ऑफ रेशियोज है वहां पे. बट अपने को 25 पे पूरे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने एंड वो आपको मिल जाएंगे रेशियोज के चैप्टर में. कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट में जैसे कैश फ्लो पढ़ने बैठोगे तो कैश फ्लो बनाने मत बैठ जाना पूरा, लाइक कि डिफरेंट कॉम्पोनेंट. सिर्फ ये पढ़ लो कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैश फ्लो के स्ट्रक्चर क्या है. जैसे कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होती है तो वो अगर आपको याद है तो यू आर डूइंग गुड. इनकम स्टेटमेंट इन बैलेंस शीट में भी वही है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद कर लो, बेसिक कर लो और डीप मत जाना. देन यू हैव डे 8, 9, 10. दिस इज स्पेशली फॉर एडवांस अकाउंटिंग. एडवांस अकाउंटिंग मींस कि आपको जो हायर एडवांस लेवल्स आ जाते हैं. तो स्पेसिफिकली फॉर चैप्टर डे 8 स्पेशल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. दिस इज दैट चैप्टर वेयरइन यू विल ओनली हैव टू डू जर्नल एंट्रीज. बट अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप इस पर्टिकुलर डे को भी रिविजन के थ्रू पे ले सकते हो. ये जो चैप्टर है स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के, दैट आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे आगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है. बट अगेन अगर आपके पास टाइम है तो एक डे इसको एलोकेट कर लो और उसमें बेसिक्स पढ़ लो. जैसे इसॉप्स का मतलब क्या होता है, इसॉप्स का बेसिक, इसॉप्स कब दे सकते हैं, इसॉप्स की बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या है. अकाउंटिंग फॉर शेयर ट्रांजेक्शंस में आप ये पढ़ सकते हो कि कैसे एक शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री पास होती है. सिंपल कर सकते हो. अगर नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश then you can skip it. Simple because this is not that much important. Then comes to accounting standards.
Accounting standards में start with revenue recognition and inventory one. Inventory one is the most important, along with your property, plant and equipment. Okay, this is also very important. Accounting standards में I have told you concepts मिलेंगे छोटे छोटे, उनको समझो और उनके साथ जर्नल एंट्री लगानी है. तो अगर आपने ऊपर वाले जो चैप्टर्स है वो अच्छे से कर लिए, then your accounting standard part is also very much done. Then allocate a complete day to chapter 20, which is preparation and presentation of final accounts. This is also very important chapters. अच्छे से करना है और बेसिक तो करना ही करना है. और जो जिन चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ ना बेसिक करना है, उसका मतलब है सरफेस रीडिंग. सरफेस रीडिंग कर ली, यू आर गुड टू गो. देन चैप्टर 12 में रिविजन कर लो एक बार. डे 12 में, सॉरी नॉट चैप्टर 12 में, डे 12 में रिविजन. और लास्ट के जो 2 डेज बचते हैं, दैट इज डे 13 एंड 14, इंश्योरेंस एक दिन में ही आपका हो जाएगा. और ऑडिटिंग के कुछ स्पेसिफिक जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कब इन्वेंट हुई थी, इंडिया के अंदर ऑडिटिंग का रेगुलेटर कौन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इतना भी कर लोगे तो भी ऑडिटिंग इज डन. एंड लास्ट में आई एम गिविंग यू अ बफर डे. बफर डे मींस कि अगर आप कहीं शादी वादी में दोस्त वोस्त से मिलने चले गए तो उसको आप यूज कर सकते हो. आई हैव रिटन इट ओवर हियर दैट यूज इट वेरी वाइजली. इसको अच्छे से यूज करना है. इसको ऐसा नहीं कि आपने वेस्ट कर दिया. हो सके तो इस दिन भी रिविजन कर लो एंड यू आर गुड टू गो. So this is the complete timetable for 15 days for you. So this is the end of this session. The overall theme remains the same. Complete the basics and then move to the higher advanced chapters in accounts. Insurance, वहाँ पे सभी basic है तो आप पूरा पढ़ लो. Auditing का जो component है that is covered by when you are covering your accounts. So this is it, my friends. I hope the video was interesting for you and all the best for your future coming examinations.